Good morning to all of you. We discussed in the last period summary of forfeited and reissued of share. Forfeited and reissued of share. Just discuss for a few minutes. What is the meaning of forfeited and what is the meaning of reissue? On non-payment of allotment money or call money, company cancel a membership of shareholders. This is called as forfeited. And what is the meaning of reissue? Company issued same forfeited shares. So it is called as reissue because previously it is issued, then forfeited, and again issued. So it is called as reissue. The word is added with the issued, reissue. In the last video we discussed whenever a concept of forfeited share you discuss, then be remember in the case of forfeited, you have to find out called up capital in the case of share issued at par. We are now discussing issued at par, not issued at premium. In the next lecture, we discuss the issued at a premium. When your share is issued at par, and in this case, due to the non-payment of allotment money or call money, if you forfeit this share, then you have to find out on forfeited share, you have to find out called up capital because you are issued at par. At par, that means you can called up only the capital amount. So whatever called up amount, out of this you have to find out how much is paid and how much is unpaid. Means a defaulter shareholder, it is called as defaulter shareholder. Why it is defaulter? Because you called up the amount but he didn't pay. So he is considered as a defaulter shareholder. The defaulter shareholders, whoever, you have to find out how much amount should be called up on his share, and out of this called up amount, how much is paid and how much is unpaid. Now, as he is a defaulter shareholder and we are forfeited shares, so the company can cancel the membership. That means when you called up in the previously, it is credited to share capital account. Whenever you called up the amount, whether it is for application, whether it is for allotment, whether it is for call money, you can credit it to the share capital account. But now you cancel his membership, and that is why whoever called up capital, it should be debited to share capital account. And whatever the paid amount, it is not refunded to the shareholder. So it is one type of company's profit, and as it is profit, it should be credited to share forfeiture account. And whatever the unpaid amount,
Whenever you called up, then whatever unpaid you are debited to call in arrears. Debited. Previously, not at the current. Previously. But now, you cancel its membership. So, you have no right to call up this amount. So, what you do? So, now you can credit such call-in arrears. So, whatever the unpaid amount, it should be credited to call-in arrears account. Instead of call-in arrears account, college will say you have to credited if allotment amount then share allotment, if call amount then share call. Means if your unpaid amount is related to allotment amount, so you have to credited share allotment. If your unpaid amount is related to the call account, then you have to credit it to the share call account. You are in SYBCom, so you must have to understand in the English. I will try to explain you. Now, see your examples. I issued two pamphlets. The first part is of theory and second part is of example. So whenever you can see a videos of example, then you have to keep with you only the second part of the pamphlet, and that is why I divided these two pamphlets. In the first page, we have to given issue of share at par. It's nothing but simple journal entries, which already we learned in the previous lectures. Thereafter, share issued at premium. Share issued at premium. It is also simple journal entries, which already discussed the whole example, and I say you that you have to complete your 9 example in your books. Now we are discussing about the example number 10. Issued, forfeited and reissued. Now issue part is already we discussed. Now we have to discuss forfeited and reissue. Whenever the point of reissue, you have to keep in your mind whether it is fully reissued, yeah, it is partly reissued. Now example 10. Be remember, be concentrate, very important example. M Limited, the name of the company, forfeited 600 equity share. Why company forfeit the share? Its reason is due to the non-payment of allotment money या call money. Here company forfeit 600 equity share, so you have to find out how much amount not paid on this 600 equity share. M Limited forfeited 600 equity share of one shareholder, means this 600 equity share held by one shareholder. The name of the person is given Govind. Name is not important. Again, M Limited forfeit 600 equity share of one shareholder Govind for non-payment of final call of ₹3 per share. यहाँ रुपीस का साइन लिखना है, तो ₹3 पर शेयर नॉन पेमेंट है। 600 इक्विटी शेयर क्यों फॉरफिट किया है? जो गोविंद ने ऑक्यूपाई किया था, तो उसने ₹3 पर शेयर पे किया नहीं है, इसीलिए। इसका मतलब क्या हुआ? तो कंपनी हैज कॉल्ड अप ₹10 पर शेयर एज फेस वैल्यू ऑफ शेयर। कंपनी ने ₹10 कॉल्ड अप किया है फेस वैल्यू के जरिए, उसमें से ₹3 पे किया नहीं है। तो उसका हम अगर समरी बनाए तो आगे पढ़ो, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना है?
10 पर शेयर। अब इस 10 में कितना पेड है और कितना अनपेड है, तो आपको यहाँ लिखा है कि पेड कितना है और अनपेड कितना है। तो यहाँ आपको बताया है कि अनपेड है ₹3, तो इसका मतलब पेड कितना हुआ ₹7। आगे देखो, 10 रुपया कॉल्ड अप था, उसमें से ₹3 नॉन पेमेंट है, इसका मतलब ₹7 पे है। गोविंद हैड पेड ₹4, यहाँ रुपीस का साइन रह गया है, ₹4 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। तो ये 4 और 3 उसका टोटल कितना हुआ ₹7। तो ये जो ₹7 पेड किया है उसमें से ऑन एप्लीकेशन का कितना है ₹4 और अलॉटमेंट का कितना है ₹3। पेड किसका किया है वो ज़रूरत नहीं है, अनपेड किसका है वो ज़रूरत है। कॉल अमाउंट, कौन सा कॉल अमाउंट है, तो फाइनल कॉल लिखा ही है, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल का बाकी है। तो ये अब आपका एग्जाम्पल यही है, इसके पर आपको एग्जाम्पल काउंट करना है। तो अब जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड, नेम ऑफ द कंपनी क्या है, एम लिमिटेड। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड। कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ही एंट्री लिखनी है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF नंबर, डेबिट ₹, और क्रेडिट। तो पहली एंट्री कौन सी आएगी, ₹10 हमने कॉल्ड अप किया है। अब ये शेयर होल्डर जो है उसका नाम हम कैंसिल करते हैं, मीन्स उसकी जो भी अमाउंट प्रीवियस एंट्री में हमने क्रेडिटेड की होगी वो अब क्या करेंगे, डेबिटेड करेंगे। तो कौन से खाते में डेबिट करेंगे, तो कौन से खाते में क्रेडिट किया होगा, तो जब जब हमने उसके पास से अमाउंट कॉल्ड अप किया होगा तब हमने शेयर कैपिटल क्रेडिट किया होगा। से फॉर द एग्जांपल मैं सपोज कि आपको समझाता हूँ कि पहली एंट्री, से फॉर द एग्जांपल ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में 2 एंट्री हम लिखते थे। पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव किया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, और दूसरी एंट्री ये जो शेयर एप्लीकेशन है वो टेम्पररी था, याद आता हो तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, मीन्स उसका जो एप्लीकेशन का मनी दिया है वो शेयर कैपिटल में हमने क्रेडिट किया है। अब ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में हम क्या करेंगे, पहले अलॉटमेंट का अमाउंट कॉल्ड अप करेंगे। तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हमने कॉल्ड अप किया है, अभी मिला नहीं है तो कॉल्ड अप किया है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब हमने जब उसको उनके पास से कॉल्ड अप किया, जब हमने उनके पास से पेमेंट को कॉल्ड अप किया तभी हमने इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया था। लेकिन जब आता है तो जितना आएगा इतना बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं आएगा इतना कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। तो ये जो अलॉटमेंट था वो टेम्पररी अकाउंट था, तो उसको हम लास्ट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से जब एप्लीकेशन का डायरेक्टली हमको अमाउंट मिलता है, लेकिन वो मिला है वो हम कौन से खाते में जमा करते हैं, कैपिटल के खाते में, और जब अलॉटमेंट का हम कॉल्ड अप करते हैं तभी हम कौन से खाते में कैपिटल क्रेडिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद अगर हम कॉल अमाउंट का
रकम कॉल्ड अप करेंगे ऑन कॉल, तो उसकी भी यही एंट्री आएगी। कौन सी आएगी? तो पहले अमाउंट कॉल्ड अप करेंगे कॉल अकाउंट का, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जब हम कॉल्ड अप करते हैं तभी हम उसके कैपिटल खाते में जमा करते हैं, और जब अमाउंट मिलेगा तब बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं मिला वो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और ये जो टेम्पररी अकाउंट था वो इक्विटी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। तो आपको समझ देना है कि जब हम कॉल्ड अप करते हैं तब ही कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो अब ये 10 रुपया जो हमने कॉल्ड अप किया है वो कौन से खाते में क्रेडिट होगा? तो अलग अलग कैपिटल में। तो अब उसको डेबिट करेंगे तो कौन सी एंट्री आएगी? चलो बोलो। पहली एंट्री इक्विटी शेयर, आपको याद रखना है यहाँ कितना कॉल्ड अप किया है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना नंबर ऑफ शेयर था? 600। कितना कॉल्ड अप किया था? 10 रुपये। तो कितना होगा? 6000 टू। अब 10 रुपीज़ में आपको मालूम है कितना रुपया पेड किया है और कितना रुपया बाकी है। 7 रुपीज़ पेड किया है और 3 रुपीज़ आपका बाकी है। 7 रुपीज़ पेड किया है, 3 रुपीज़ बाकी, जो पेड किया है वो वापस नहीं देना है। तो 2 इक्विटी शेयर फॉर टीचर अकाउंट क्रेडिट। कितना? 600 इंटू 7। और बाकी का अनपेड अमाउंट है। तो अनपेड अमाउंट जब हमने मंगवाया होगा तो कॉल इन एरियर्स नहीं मिला होगा, तो कॉल इन एरियर्स डेबिट किया है तो यहाँ हम कॉल इन एरियर्स क्रेडिट करेंगे। लेकिन ये कॉल इन एरियर्स अलॉटमेंट में भी लिखते हैं कॉल इन एरियर्स। यहाँ देखो, जब अलॉटमेंट का नहीं मिला तो अभी हमने क्या लिखा? कॉल इन एरियर। फाइनल कॉल का भी नहीं मिला तो हमने क्या लिखा? कॉल इन एरियर। तो ये कॉल इन एरियर्स किसका है? अलॉटमेंट का है कि फर्स्ट कॉल का है? ये जानने के लिए यहाँ हम कॉल इन एरियर्स के बजाय क्या लिखेंगे? जिसका अमाउंट बाकी है वो लिखेंगे। तो यहाँ फाइनल कॉल का अमाउंट बाकी है तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट बाकी है? 600 इंटू 3। तो टोटल कितना हुआ? 1800। तो 6000 डेबिट, 6000 डेबिट और 6000 क्रेडिट। नरेशन में क्या आएगा? बीइंग 600 शेयर forfeited due to non-payment of फाइनल कॉल। बस आपको यही एंट्री पूछी है और कोई एंट्री यहाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फोरफिटेड का ही पॉइंटर दिया है। समझो, आपको किसका पॉइंट दिया है? फोरफिटेड का ही पॉइंट दिया है, रीइश्यू का पॉइंट नहीं दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो, आपका जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हो कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर फोरफिटेड ऑफ शेयर, पास जर्नल एंट्रीज फॉर फोरफिटेड ऑफ शेयर। शायद यहाँ एक और लाइन में ऐड कर दूँ, ऑन द एजम्पशंस दैट। यहाँ अब मैं एक लाइन ऐड करता हूँ, देख लो आप प्रैक्टिस के जरिए। ऑन एजम्पशंस that such forfeited share reissued
एट रुपीज 8.50 इच। तो यहाँ रेशियो का पॉइंट दिया है, तो अब हम रेशियो का पॉइंट यहाँ लिखेंगे। तो रेशियो किया, कितने रुपीस में रेशियो किया? 8.50 इच। इच। तो अब हमने 8.50 इच में रेशियो किया है, तो हम यहाँ रेशियो का पॉइंट लिखते हैं। तो कौन सी एंट्री आएगी समझो। यहाँ मैंने नरेशन निकाल दिया है क्योंकि मुझे लाइन की ज़रूरत है। तो सेकंड पॉइंट आएगा रेशियो का पॉइंट। तो रेशियो करेंगे 8.50 इच। फिर से देखो आप कौन सा पॉइंट है, 8.50 इच। तो 8 रुपीज़ एंड 50 पैसे में मैंने इश्यू किया है। कौन से? फोरफिटेड शेयर। फोरफिटेड शेयर में जितने फोरफिट किए वो सभी। तो उसका मतलब क्या हुआ? ऑल शेयर्स आर रीइश्यूड, नॉट द पार्टली रीइश्यू। तो यहाँ एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट आएगा? तो 8.50 इंटू 600। 8 6 ज़ा 48, 6 5 ज़ा 300, 48 प्लस 300 50, 100। तो बाकी का लॉस हुआ। तो जब प्रॉफिट हुआ था, जब हमने जब्त किया, तो कौन से खाते में जमा किया था? फोरफिटेड शेयर, फोरफिटेड। तो अब लॉस हुआ तो वो भी कौन से खाते में डेबिट करेंगे? जो खाते में हम लॉस प्रॉफिट ले जाते हैं वही खाते में वही शेयर है, तो डेबिट भी कौन से खाते में करेंगे? वही खाते में करेंगे। तो कौन सा एंट्री आएगा? जितना लॉस हुआ है वो एक्चुअली हमने कितने का, हमने जो शेयर फोरफिट किए थे वो कितने रुपीज़ के थे? फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, कॉल्ड अप अमाउंट। तो जब हम रीइश्यू करेंगे तो वो कितने रुपीज़ में रीइश्यू करेंगे? 10 रुपीज़ में। 10 रुपीज़ के सामने हमको कितना मिलता है? 8.50। उसका मतलब क्या हुआ? 1.50 लॉस। तो इक्विटी शेयर, फोरफिचर अकाउंट, शेयर फोरफिचर लिखोगे तो अभी चलेगा। कितना रुपीज़ लॉस हुआ? तो 1.50 इंटू 600, 15 6 900। तो यहाँ कितना आएगा? 900। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो कितना आएगा? 6000 ही आएगा, बराबर, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फोरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट रुपीज़ 8.50 इच। अपने आप लिखना है, मैं बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ। बीइंग फोरफिटेड शेयर रीइश्यूड, फोरफिटेड शेयर रीइश्यूड, ऑल शेयर रीइश्यूड है ना, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बीइंग ऑल फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट रुपीज़ 8.50 इच। अब आपने फोरफिट किया और रीइश्यू किया, तो उसमें नेट प्रॉफिट कितना आया ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर नेट प्रॉफिट है तो वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? ये कंपनी का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ, तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। ये कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। अगर है तो है कि नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है। ये नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट था और ये जो था वो लॉस था। तो प्रॉफिट पर शेयर कितना था? 7 रुपीज़। लॉस पर शेयर कितना है? 1.50। तो अब नेट प्रॉफिट कितना है? तो 7 माइनस 1.50, तो कितना हुआ? 5.50। तो प्रॉफिट होगा तो कौन से खाते में आएगा? ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, तो क्रेडिट ज़्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस हुआ तो क्लोज करेंगे, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। ये शेयर फोरफिचर अकाउंट, यहाँ देख लो आप फिर से, शेयर फोरफिचर अकाउंट 7.50 क्रेडिट, सॉरी 7 रुपीज़ क्रेडिट, और 1.
50 डेबिट, तो डिफरेंस कहाँ आएगा ये आप समझ सकते हो। तो 7 क्रेडिट, 7 क्रेडिट, तो डिफरेंस यहाँ आएगा 5.50। तो शेयर फॉरफीचर डेबिट, तो एंट्री कौन सी आएगी, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कितना आएगा 5.50 इंटू 600, तो 600 इंटू 5.50, 6 5 3000 एंड 6 5 30, तो 3300, तो कितना आएगा 3300 नेट प्रॉफिट हुआ। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग नेट प्रॉफिट ऑन forfeited reissue of the forfeited share, net profit on reissued forfeited share transferred to being net profit on reissued forfeited share transferred to capital reserve account। तो ऐसे ये एंट्री आ सकती है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया, वैसा ही 11th वाला एग्जाम्पल है, समझ लो। एन लिमिटेड फॉरफिट 2400 शेयर, एन लिमिटेड की बात है। तो एन लिमिटेड फॉरफिटेड 2400 शेयर ऑफ रुपीज़, यहाँ रुपीज़ का साइन रह गया है, 10 रुपीज़ ईच ऑफ श्री प्रेमल भाई, ये नेम ऑफ द शेयर होल्डर है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर नन पेमेंट ऑफ रुपीज़ 2 पर शेयर, कितना रुपीज़ नहीं पे कर रहे हैं, 2 पर शेयर ऑन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन फर्स्ट कॉल। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कॉल का उन्होंने 2 रुपीज़ पे नहीं किया है, तो उसका मतलब कि फाइनल कॉल होगा, तो फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज़ में नहीं पे किया है। अमाउंट ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने कितना रिसीव किया, 3 रुपीज़ और 3 रुपीज़, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, तो 3 और 3, इसका मतलब कितना हुआ, टोटल 6 रुपीज़ हुआ। तो टोटल कंपनी ने 6 रुपीज़ रिसीव्ड किया है, तो एंड 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का नहीं पेड किया है, तो ये हुआ आउटस्टैंडिंग। पास जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो समझो यहाँ कितने शेयर है, 2400 शेयर है, तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन देखो। एग्जाम्पल 11, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, तो कंपनी ने क्या बोला है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का पे किया है, रिसीव किया है, और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट का रिसीव किया है। मीन्स 3 रुपीज़ रिसीव किया, इसका मतलब ये मंगवाया तो होगा, और फर्स्ट कॉल का नहीं पे किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये मंगवाया तो होगा ना, मंगवाया है तभी तो मालूम पड़ा कि उसने पेड नहीं किया है। तो टोटल कितना पेड किया, 8 रुपीज़। कितना पेड किया, 8 रुपीज़। अब ये 8 रुपीज़ में उन्होंने कितना पेड किया और कितना आउटस्टैंडिंग किया, तो और कितना अनपेड है, तो आपको सिंपल मालूम है कि उन्होंने फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज़ नहीं पेड किया है, इसका मतलब 3 + 3 रुपीज़ रिसीव किया है, इसका मतलब पेड किया है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन के हिसाब से एग्जाम्पल हो गया कि टोटल हमने, अच्छा शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपया, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं पे किया है। यहाँ लैंग्वेज में ही आपको थोड़ा डाउट हो जाता है कि फर्स्ट कॉल नहीं पे किया है, इसका मतलब फाइनल कॉल होगा। कोई अगर आपको बोलता है कि ये मेरी सेकंड वाइफ है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाइफ होगी, या तो उसको डाइवोर्स दे दिया होगा। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज पर से आपको समझना है।
शायद किसी को एग्जाम्पल अच्छा ना लगे, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। कोई ऐसा बोलते मेरी ये तीसरी बार की एग्जाम है, उसके बाद उसका मतलब उसने फर्स्ट 2 टाइम्स उन्होंने एग्जाम दे दिया होगा। तो यहाँ फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज कॉल्ड अप किया है, फर्स्ट कॉल का नहीं पे किया, इसका मतलब सेकंड कॉल होगा, लेकिन फर्स्ट कॉल का नहीं पे किया है और शेयर फॉरफिट कर दिया, ऐसा यहाँ बोला है, आप देख सकते हो। यहाँ इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हो कि कौन सा माहिती देखो, एन लिमिटेड फॉरफिटेड, फिर से देखो, एन लिमिटेड फॉरफिटेड 2400 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each of 3 prem buy for non payment of ₹2 per share on first call। फॉरफिट किया है 2400 शेयर। क्यों फॉरफिट किया है, तो उसका रीजन दिखा है, नन पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, मीन्स फर्स्ट कॉल का नहीं पे किया, इसीलिए फॉरफिट किया। इसका मतलब सेकंड कॉल होगा जो मंगवाया नहीं है, वो कितना है अभी बोला नहीं है, लेकिन यहाँ इतना आपको कंफर्मली बोल दिया है कि ₹2 फर्स्ट कॉल का नहीं पे किया है। तो उसका मतलब फर्स्ट कॉल के आगे कौन सा होगा, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, तो वो पे कर दिया होगा, तो लिखा ही है एन अमाउंट ऑफ ₹3 पर शेयर, 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। तो 3 और 3 इसका मतलब क्या हुआ, टोटल ₹6 रिसीव्ड और ₹2 आउटस्टैंडिंग, तो टोटल कितना हुआ, 6 + 2 ₹8। तो वही तो हमने यहाँ लिखा है कि टोटल कंपनी ने मंगवाया कितना, ₹8। टोटल कंपनी ने मंगवाया कितना, ₹8, और ₹8 में आप देख सकते हो ₹6 पेड है, ₹2 अनपेड है। तो अब हमको उसकी एंट्री लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, तो जितना मंगवाया है इतना कैपिटल अकाउंट से डेबिट करेंगे, जितना पेड किया है वो वापस नहीं देना है तो ये वो जब्त करेंगे, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये जब्त किया तो ये कंपनी का एक तरह का प्रॉफिट हुआ, इसीलिए वो प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे कौन से खाते में, शेयर फॉरफिट। और ये जब मंगवाया था तब हमने कॉलिन एरर्स के खाते में डेबिट किया था, अब उनको कैंसिल कर दिया है, तो वो जो डेबिटेड अकाउंट है वो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री कौन सी आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर है 2400, कितना मंगवाया है ₹8, जितना पे किया है वो वापस नहीं देना है, मैंने आपको बताया इक्विटी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट, कितना, तो 2400 पे कितना फॉरफिट किया है, ₹6 जो हमने ले लिया है वो वापस नहीं देना है, और कितना बाकी था, ₹2। ये ₹2 किस कॉल का बाकी था, फर्स्ट कॉल का, तो कॉलिन एरर्स नहीं लिखेंगे लेकिन फर्स्ट कॉल लिखेंगे, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, कितना 2400 इंटू ₹2। तब 2400 इंटू 8 करो, 8 2 द 16,000, 8 4 द 3200, तो 16,000 प्लस 3200 19,200, 2400 इंटू 6 6 to the 12,000, 6 for the 2400, 12 plus 24, 14,400, and 24 to the 4,800, 19,200 डेबिट, 19,200 क्रेडिट। तो ये फॉरफिट की एंट्री है, तो यही आएगी। तो यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल आपको समझाया, तीसरा एग्जाम्पल जो है वो आप अपने आप करना, फॉरफिटेड का ही पॉइंट करना है। दिस इज इन होमवर्क। गुड डे।